Okay, good morning, students. Today we are going to discuss first lesson of chemistry. First lesson means the name of lesson is basic concept of chemistry. Actually, last class I told I will start third lesson classification of elements, but some students need to explanation of first lesson. That's why I'm going to start first lesson basic concept of chemistry. Okay, you know very well what is atom, what is molecule, etc. What is atom and what is electron, proton, neutron, and location of proton, electron, neutron in atom. You know very well. Next, now we are going to discuss basic concept of chemistry. Here, introduction, some important importance of chemistry. Uh, Here, this is not important only for information. Here, chemistry is the science of molecules, variety of concept and transformations. Actually, chemistry means first lesson is the introduction. See, right? So, chemistry means science of molecules, variety of compounds and transformation. Atom, molecule, compound, matter, etc. All will including this chemistry. Chemistry has played a central role in preventing and finding solution of problem of science. Chemistry is associated with the substance formed in environment and the changes taking place in it. And next one, importance of chemistry. Uh, in this, some compounds are important. First one is uh, um first one is medicinal chemistry. Medicinal chemistry. Some of the branches are there for chemistry. One is green chemistry, industrial chemistry, green chemistry or industrial chemistry, analytical chemistry, polymer chemistry, and organic chemistry, physical chemistry, etc. are the branches of chemistry. Here, green chemistry means some important topics we are going to discuss here. First one, green chemistry. Green chemistry means it is used for the industrial. Then, when the pollutants are released from the industries, by we can applying this green chemistry means इंडस्ट्रियल से जो पोल्यूशन पोल्यूटेंट्स रिलीज होता है पोल्यूटेंट का इफेक्टिवनेस को डिक्रीज करने के लिए जो केमिस्ट्री यूज करते हैं वो ग्रीन केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. तो इंडस्ट्री से जो केमिकल्स टैक्सिक कंपाउंड्स जो रिलीज होते रहेगा तो टैक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए जो केमिकल रिएक्शंस जो केमिकल कंपोनेंट्स जो केमिकल मेथड्स यूज करते हैं वो सब किस पे आएगा ग्रीन केमिस्ट्री में आएगा. नेक्स्ट वन हियर तो मेडिसिनल केमिस्ट्री ड्रग्स केमिस्ट्री यूज करके ड्रग को प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे. फॉर एग्जांपल कैंसर ड्रग है कैंसर ड्रग सिस्प्लेटिन को यूज करके कैंसर को क्यूर करते हैं. सिस्प्लेटिन है ड्रग्स. टेक्सो the discovery of medicine used for cancer and the life-saving drugs like cisplatin and Taxol from the chemistry. And next one, chlorofluorocarbon used in refrigerator and air condition are hazardous to ozone layer. Hazardous means harmful. CFC, chlorofluorocarbons कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशंस में यूज करते हैं. तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को डिप्लीशन मींस ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहा है. तो इसके जगह पे द सेम ऑल्टरनेटिव ऑफ CFC have been invented and can be successfully prepared synthetically. मीन्स केमिस्ट्री यूज करके केमिस्ट्री से जो नेचुरल केमिस्ट्री यूज करके ऐसे केमिकल प्रिपेयर कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग को हार्मलेस होना चाहिए, नेचर भी डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए. ऐसे केमिकल यूज करके नेचर को प्रोटेक्ट करना है. जैसे CFC की वजह से ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होता है. अगर ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हुआ तो
यूवी रेस पास होगा, यूवी रेस पास होगा तो म्यूटेशंस फॉर्म होगा, इसलिए यूवी रेस को स्टॉप करने के लिए कंपलसरी ओजोन लेयर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन में। तो इसके जगह पे दूसरा कुछ कंपोनेंट्स ऑल्टरनेटिव होगा, तो ये ऑल्टरनेटिव किसके बेस पे रहेगा, केमिस्ट्री बेस पे। तो सीएफसी की जगह पे दूसरा कुछ हार्मलेस, मतलब ओजोन लेयर को जो डिप्लीशन नहीं करेंगे ऐसा केमिकल को प्रोड्यूस करना है। ऐसे केमिकल प्रोड्यूस किया है, दैट इज HFC 134, HFC 134। तो ये रिप्लेसमेंट ऑफ CFC की जगह पे ये यूज करेंगे तो ओजोन लेयर डिप्लीशन नहीं होगा। एंड the name of compound is 1 comma 1 comma 1 comma 1 comma 2 tetrafluoroethane is used, means HFC tetrafluoroethane, tetrafluoroethane. Here tetrafluoroethane molecular formula, ethane, one fluorine, another one fluorine, here one fluorine. It means two carbons, tetrafluoroethane, one and four. Means first carbon, second carbon, three substances are there. So one comma one comma one. Second carbon पे another one fluorine है, so two. How many fluorines are there? One, two, three, four. So tetrafluoroethane. Tetrafluoroethane, the name of this compound. And next, cisplatin is used for the cancer. And now we are going to discuss main topic is nature of matter. That is important. यहाँ start होगा, अभी तक जो भी introduction, developments and hazardous harm, hazardous from the chemistry, and decrease the toxicity of compounds by using chemistry, and benefits and losses for chemistry given here. And next, nature of matter is first topic. Basic concept of chemistry. The first topic is nature of matter. Nature of matter. Before going to discuss nature of matter, first one, what is matter? Matter means anything that has mass and occupying space is called matter. So anything that has mass and occupies space, that is known as matter. तो मतलब mass, particular mass present होगा, as well as and occupies space, some space को occupy करते हैं, तो that is known as mass and space. Having mass and occupies space, that is known as matter. मतलब anything, तो कंपल्सरी उसका पर्टिकुलर वेट होता है, मास होता है, और सम स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, तो वो क्या होगा, मैटर होगा। मैटर इज फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट हियर matter classified into different ways based on their physical and chemical properties. The first one, based on physical state of matter, physical state. Second one, based on chemical properties, based on chemical characters. Characters, chemical character. The first, physical state, chemical state, or chemical character. So first we know what is physical state, what is chemical character. Physical state means physically, means the physical states are shape, color, taste, etc. All are physical states, right? By seeing we can identify, by taste, by seeing, by touching, particular shape, etc. physical state में होगा, तो इसमें ये सब एब्सेंट होता है। तो कंप्लीट यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज, टोटल केमिकल नेचर ही चेंज होता है, ये देखने से आइडेंटिफाई कर नहीं सकता। तो ये
केमिकल कैरेक्टर कब चेंज होगा? एटम दूसरे एटम के साथ मिक्स होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तभी जो चेंजेस रहेंगे वो केमिकल चेंजेस। तो फर्स्ट, मैटर classified on the basis of physical state, three types. First one is solid state, second one is liquid state, and third one is gaseous state. Solid, liquid, and here gaseous state. Solid state, liquid state, and gaseous state. Now we are going to do the study of this. First one is solid state. What is solid state substance? The first, what are the, these are the physical state, and what is solid, and what are the characters of solid substance? Solid means solids have definite volume and definite shape. In solid, the particles are held very closely to each other, and the intermolecular attraction forces in the components particles keep them together tightly. First one, solid molecule having definite volume and definite shape. Very important. Definite shape and volume. Definite shape and definite volume solid substance. For example, a cube ले रहा हूँ मैं, one cube like this. This is one solid substance, particular shape cube, and it occupies some volume. Means this much of volume having this substance. That's why this is solid. Definite shape, definite volume को occupy करेंगे. तो definite shape क्यों होगा solid substance को? In solid substance, the molecule or atoms are bind together tightly due to the intermolecular attraction force. Strong intermolecular attraction force. तो solid में molecule के बीच में जो intermolecular attraction force होता है, intermolecular attraction force यहाँ पे strong. तो strong intermolecular attraction force, this will bind the molecules tightly. That's why it having particular definite shape and definite volume. So this is the solid substance. So first one here, intermolecular attraction force. Intermolecular attraction force. Already ninth standard में learned किया. Inter means in between two molecules. Intermolecule. In between two molecules. What will happen? Attraction will appear between because of electrons. In between two molecules, attraction will appear. That is known as intermolecular attraction force. For example, this one is one molecule and this one is one molecule. This molecule having electrons, this molecule having electron, and this molecule having proton, electron. Then these two molecules will attract to each other. This nucleus attract this nucleus electron, other molecules electron. That's why this molecule are attracted towards each other by the intermolecular attraction force. These intermolecular attraction forces are discovered by van der Waals scientists. That's why these attraction forces are van der Waals attraction force. This intermolecular attraction force very this intermolecular attraction force very strongly bind these solid particles together, and that's why solid having definite shape and definite volume and definite melting point, boiling point, etc. तो फर्स्ट आपको इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन पावर समझ में आएगी, तो तीनों को फिजिकल स्टेट में क्लियर समझ में आएगा. तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड स्टेट में मैक्सिमम रहेगा, तो मॉलिक्यूल को टाइटली क्लोज कर बाइंडिंग करके रख देंगे. तो टाइटली बाइंड होगा तो मॉलिक्यूल को मतलब एक सब्सटेंस को पर्टिकुलर शेप आ जाएगा और पर्टिकुलर वॉल्यूम को दैट इज सॉलिड स्टेट. एग्जांपल ऑल सॉलिड सब्सटेंस. एग्जांपल हियर आयरन. Iron ले लो, ice ले लो. Ice also one of the solid substance having specific volume and specific shape. Iron, ice, copper rod, etc. All are the solid substance. And second one is gases. So in these gases does not have
पर्टिकुलर शेप, डेफिनेट शेप नहीं रहेगा। लिक्विड डज नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप, तो डेफिनेट शेप नहीं रहेगा, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी एब्सेंट रहेगा यहाँ पे, बट दे कैन एक्ट बाय द पर्टिकुलर वॉल्यूम। वॉल्यूम तो कंपल्सरी लिक्विड स्टेट को रहेगा, बट लिक्विड डज नॉट हैव ए पर्टिकुलर डेफिनेट शेप। तो यहाँ पे सॉलिड को डेफिनेट शेप रहेगा, डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा, बट लिक्विड्स डज नॉट हैव पर्टिकुलर शेप, बट दे विल ऑक्यूपाई definite volume. Reason is, here in liquid, the intermolecular attraction force between two molecules will be very less than solids. Solid के अंदर जितना intermolecular attraction force है, जितना intermolecular attraction power है, वो लिक्विड मॉलिक्यूल में नहीं है। लिक्विड मॉलिक्यूल में होगा, लेकिन सॉलिड मॉलिक्यूल में जितना है उससे कंपेयर करेंगे तो लिक्विड मॉलिक्यूल में कम होगा। तो lower intermolecular attraction force present in the liquid molecule comparison with solid. That's where liquids does not have definite shape and liquids occupy definite volume. So intermolecular attraction force will decide the physical property of the matter. So intermolecular attraction force strong over to solid, minimum over to volume, minimum over to liquid and gases. Gases does not have definite shape and definite volume. गैसेस को डेफिनेट शेप नहीं होगा, डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होगा। एग्जाम्पल, 1 लीटर गैस को 1 लीटर बॉटल में फिल कर सकते हैं, सेम 1 लीटर गैस को कंप्लीट एक रूम में भी फिल कर सकते हैं। क्लियर, मतलब रूम का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहेगा तो भी 1 लीटर वॉल्यूम कंप्लीट रूम को ऑक्यूपाई करेंगे। सिमिलरली टोटल रूम में जितना गैसेस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई किया 1 लीटर में, वो सबको 1 लीटर बॉटल में भी इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब गैसेस डज नॉट हैव पर्टिकुलर शेप एंड पर्टिकुलर वॉल्यूम ड्यू टू लोअर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल कंपैरिजन विद लिक्विड। तो गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पावर वेरी लो होता है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पावर मिनिमम होगा तो गैसेस में मॉलिक्यूल दूर दूर रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। फॉर एग्जांपल, सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स टाइटली बाइंड होगा, तो टाइटली बाइंड होकर एक पर्टिकुलर शेप को गेन करेगा। तो लिक्विड में क्या होगा, मॉलिक्यूल जस्ट दूर दूर रहेगा। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पावर स्ट्रॉन्गर, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पावर मिनिमम, intermolecular attraction power is almost negligible, 0. Then particles will arrange maximum distance. Intermolecular attraction power बहुत कम रहेगा तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, तो पर्टिकुलर शेप नहीं रहेगा, पर्टिकुलर वॉल्यूम भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे लिक्विड को पर्टिकुलर वॉल्यूम रहेगा, पर्टिकुलर शेप नहीं रहेगा। मीन्स मैटर फिजिकल स्टेट विल डिसाइड इट्स इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। आपको इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स परफेक्टली समझ में आएगी तो फिजिकल स्टेट्स के बारे में समझ में आएगा। Intermolecular attraction force means the attraction present between two molecules, that is known as intermolecular attraction force. So when intermolecular attraction force will be increased between molecules, then substance will be present as solid. Then intermolecular attraction force minimum, liquid. Intermolecular attraction force almost negligible, then that is gaseous state. Intermolecular attraction force are maximum, then that substance having definite shape and volume. Solid substance only definite volume, there is no shape, that is liquid, and there is no volume and no shape, that is gaseous state. And here the three states of matter are interconvertible by changing the conditions of temperature and pressure. They change their states. Right. These physical states of matter will be changed. Means matter are interconvertible. Interconvertible means solid to gas, liquid to gas, gas to liquid, liquid to solid में कन्वर्ट होता है। तो ये सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होने के लिए
रीजन ये है टेम्परेचर. Temperature also one of the main factor to decide the physical state of matter. तो यहाँ पे टेम्परेचर सर आपको स्टार्टिंग में बताया था intermolecular attraction force will decide the shape of the means physical state of the substance. But here another one, temperature also affect the state of the physical state of the substance or matter, because temperature will decide the intermolecular attraction force. इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स किस पे डिपेंड होता है? टेम्परेचर पे डिपेंड होता है. इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड होगा? टेम्परेचर मीन्स हम लोग हीट कर रहे हैं, मीन्स बाहर से एनर्जी दे रहे हैं. बाहर से एनर्जी देंगे तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे? ये एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे. व्हेन मॉलिक्यूल्स विल ऑब्जर्व द एनर्जी बाय द एक्सटर्नल, then the molecule kinetic energy will be increased. So when temperature will be increased, kinetic energy of the molecule will be increased. So यहाँ पे ध्यान से काइनेटिक एनर्जी, तो मैं ये मैटर नहीं बता रहा हूँ, ओनली फिजिकल स्टेट का ही डिस्कशन कर रहा हूँ. काइनेटिक एनर्जी के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स. इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस. तो sorry, kinetic energy is directly proportional to its temperature. Intermolecular attraction force उल्टा होता है. Temperature, this one is very important. When temperature will be increased, kinetic energy of the molecule will be increased. When temperature will be decreased, kinetic energy of the molecule will be decreased. Here kinetic energy किस पे डिपेंड होता है? टेम्परेचर पे डिपेंड. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा. मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी इंक्रीज. यहाँ पे फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट है, राइट. सॉलिड स्टेट में पर्टिकुलर पार्टिकल्स हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पावर स्ट्रॉन्ग है, तो क्लोजली टाइटली बाइंड हुआ है मॉलिक्यूल्स. क्लियर. तो यहाँ पे at the room temperature, when we started to heat this substance, तो ये सब्सटेंस को, ये मैटर को हम लोग हीट करना स्टार्ट किया. तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे? टेम्परेचर को ऑब्जर्व करेंगे. टेम्परेचर को ऑब्जर्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा? इंक्रीज होगा. काइनेटिक इंक्रीज होगा तो मोशन ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीज. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय द टेम्परेचर. टेम्परेचर ऑब्जर्व करके मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो वाइब्रेशन स्टार्ट होगा. वाइब्रेशन नथिंग बट मोशन ऑफ द पार्टिकल्स. फर्स्ट वाइब्रेशन स्टार्ट होगा. वाइब्रेशन होने के बाद मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी बाय द टेम्परेचर. तो यहाँ पे वाइब्रेशन स्टार्ट होने के बाद ये स्प्रेड होने लगेगा. स्प्रेड होगा तो स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल इतना पास में है तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पावर मैक्सिमम रहेगा. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पावर क्या होगा? डिक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी इंक्रीज. मोशन ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल विल बी इंक्रीज. देन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स विल बी डिक्रीज. तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो फॉर एग्जांपल these two molecules attracted towards each other strongly and intermolecular attraction power is strong. तो हीट किया हमने, तो हीट करेंगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ेगा, यहाँ तक मूव होगा तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा. तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पावर क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पावर किस पे डिपेंड होता है? मॉलिक्यूल डिस्टेंस पे डिपेंड होता है. मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पावर मैक्सिमम होगा. डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पावर मिनिमम रहेगा. तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पावर किस पे डिपेंड होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी डिक्रीज्ड, देन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पावर विल बी इंक्रीज्ड. तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड होता है? टेम्परेचर पे डिपेंड होता है. व्हेन नॉर्मल टेम्परेचर, kinetic energy will be normal or negligible. When temperature will be increased, molecule will absorb energy and kinetic energy of the particle will be increased. Then distance between two particles will be increased and attraction between two particles will be less. The physical state will be changed. तो यहाँ पे
काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जितना ज़्यादा रहेगा उसका इन्वर्सली इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन पावर रहेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। When kinetic energy of the particle will be increased, distance between molecule will be increased, then intermolecular attraction power decreases. Means temperature intermolecular attraction power inversely proportional है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन पावर डिक्रीज होगा, एंड टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन पावर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस स्टेट ऑल आर interconvertible states. So this interconvertible states depend on its temperature. तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल बता दूंगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, लिक्विड स्टेट वाटर ले लें। तो आपको पता है वाटर मीन्स, फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक सॉलिड स्टेट इज आइस, H2O ले रहा हूँ। H2O को थ्री फिजिकल स्टेट्स होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। सॉलिड स्टेट यहाँ पे आइस, and second one, this ice will be converted to the water by increasing temperature. तो यहाँ पे increasing temperature, then this solid ice will be converted into liquid. Solid will be converted into liquid. Liquid means water. ये water हो जाएगा, and liquid का temperature भी increase करें। For example, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आइस रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लो टेम्परेचर, लो काइनेटिक एनर्जी, स्टेट इज सॉलिड स्टेट, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सम टेम्परेचर विल बी इंक्रीज्ड at room temperature, then this ice will be converted into water. This water will be, temperature will be increased, room temperature से भी ज़्यादा increase करेगा at the 100 degree centigrade temperature, then this water will be converted into gaseous state, vapor state में convert, increasing temperature, this liquid state of water will be converted into gaseous state. That gas means water vapors. Last one, vapor state में convert, vapors of water. तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर, सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस स्टेट। तो यहाँ पे लो टेम्परेचर में काइनेटिक एनर्जी लो है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन पावर मैक्सिमम, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन सॉलिड स्टेट मॉलिक्यूल, सॉलिड स्टेट में ऑब्जर्व करो, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स वेरी लेस, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल मिनिमम इंक्रीजिंग, कंपेयर सॉलिड, सॉलिड से कंपेयर करें तो यहाँ पे ज्यादा रहेगा। तो लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल गैसेस में ज्यादा रहेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन पावर डिक्रीज होगा। डिस्टेंस क्यों बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगी, ये ध्यान करें। तो यहाँ पे सॉलिड, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू गैसेस स्टेट एंड इंटरकन्वर्टेबल। तो ओके, यहाँ पे आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। नाउ ये साइड में लेफ्ट टू राइट क्या किया मैंने? टेम्परेचर इंक्रीज किया, राइट। अभी वहां से यहाँ तक टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, रिवर्स प्रोसेस, इंटर कन्वर्ट, डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो टोटल गैसेस वेपर को कलेक्ट करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लोअर टेम्परेचर, मीन्स टोटल वेपर को एक वेसल में कलेक्ट करके रूम टेम्परेचर पे रखो, तो क्या होता है? रूम temperature will be decreasing, then these gases vapors all are converted into liquid water. तो ये वाटर का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर आओ, तो वाटर का टेम्परेचर और डिक्रीज करेंगे तो लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू solid state. These are the interconvertible states depend on its temperature. Temperature increase होगा तो solid to liquid, liquid to gas. Temperature decrease होगा तो gases to liquid, liquid to solid. तो यहाँ पे एक ऑब्जर्व करो, गैसेस स्टेट में मॉलिक्यूल मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है, क्लियर।
गैसेस स्टेट में मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेगा, राइट। तो टेम्परेचर 100 और एबो 100, तो यहाँ पे गैसेस वेपर को पूरा कलेक्ट करके टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ मैं। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगा, डिक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा तो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम होगा तो अट्रैक्शन पावर between molecules, that means intermolecular attraction force, will be increasing. Then this gaseous vapor will be converted into liquid. लिक्विड का टेम्परेचर और डिक्रीज कर रहा हूँ मैं, तो और मॉलिक्यूल मीन्स इतना दूर में पार्टिकल्स यहाँ तक आ जाए, और इसका टेम्परेचर और डिक्रीज कर रहा हूँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेकर आ रहा हूँ, तो टाइटली बाइंड होगा। तो डिस्टेंस यहाँ पे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम रहेगा, मिनिमम नेग्लिजिबल। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम जीरो नेग्लिजिबल। हाई टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर जीरो नेग्लिजिबल टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर जीरो टेम्परेचर। ये यूनिवर्स में जितना भी सब्सटेंस हो, हर एक सब्सटेंस का 3 फिजिकल स्टेट्स होता है मैटर का। कंपल्सरी सॉलिड होता है, सॉलिड लिक्विड गैस होता है। तो अब नेचर में भी जो गैसेस है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये गैसेस को भी नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन देखते होगा, लिक्विड अमोनिया, अमोनिया गैस, एज वेल एज नाइट्रोजन, नेक्स्ट नाइट्रोजन एक्सेट्रा। तो फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, दैट इज नोन एज ड्राई आइस। तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके लोअर टेम्परेचर पे रख दो, डायरेक्ट वो सॉलिड पे बन जाएगा। मतलब कोई भी गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड सॉलिड स्टेट में होता है, गोल्ड को हीट करो मैक्सिमम टेम्परेचर तक, गोल्ड लिक्विड में आ जाएगा। लिक्विड में आने के बाद जो भी ऑर्नामेंट बनाना है बना सकते हैं। सिमिलर और गोल्ड को और ज़्यादा टेम्परेचर मतलब 12,000 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करो, वो वेपर में भी कन्वर्ट होने के चांसेस। मतलब एवरी मेटल, एवरी एलिमेंट हैविंग स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स डिक्रीजिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग मेल्टिंग में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो सॉलिड टू लिक्विड में आने के लिए मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट यूज करते हैं, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड आने के लिए फ्रीजिंग पॉइंट यूज करते हैं। फ्रीज मीन्स आइस मीन, दैट मीन्स सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए। तो रिवर्स होगा तो टेम्परेचर को डिक्रीज करना, ये फॉरवर्ड होगा तो टेम्परेचर को इंक्रीज करना। यहाँ पे 3 words are very very important. One is temperature, second one is intermolecular attraction force, and third one is distance between kinetic energy। तो काइनेटिक एनर्जी, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, टेम्परेचर, ये तीनों का रिलेशन आपको समझ में आएगा तो फिजिकल स्टेट में कन्वर्शन क्यों होता है, इंटर कन्वर्टेबल सब्सटेंस। तो इंटर कन्वर्टेबल क्यों होगा पता चलता है, यूनिवर्स में जितना भी हो सब्सटेंस सब इंटर कन्वर्टेबल है, फिजिकल स्टेट पे डिपेंड होता है, फिजिकल स्टेट, राइट। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन केमिकल कैरेक्टर्स। तो एक बार ध्यान से रीड करो, kinetic energy, temperature, intermolecular attraction force, distance between molecule, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये टॉपिक पे अगर परफेक्ट आइडिया होगा तो फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली समझ में आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये इसके लिए यूज करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस मैटर classified based on the chemical characters. It is also very important. This is the basic lesson for chemistry. तो यहाँ पे ये सब बेसिक्स ही है, इसके बाद फिजिकल क्वांटिटी एक्सेट्रा रहेगा। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोल कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स। ओके,